Okay. Hi all. Welcome again. Okay. So yeah, in the yesterday's lecture we have covered some of the important testing types, right? So we'll have a review for the same. Okay. So yeah, in the yesterday's session we have covered about the regression testing, right? So yeah, under okay, one moment, still people are joining. Okay. Yeah, we have covered regression testing, right? So basically later on we have covered a detailed part related to this. Regression testing is a part of system testing. Under system testing we are performing regression testing, right? And these different phases, different testing types we have covered. Like there are different SDLC phases. Out of that, during the testing, okay, during the testing we are firstly performing smoke testing, right, on the unstable build, and we are performing sanity testing on the relatively stable build. Okay, if there is any sort of bug and if that bug is fixed, right? So yeah, on the fixed bug we are performing basically retesting in order to check whether that bug is fixed or not. Okay, and due to that bug, if any another module is impacted, so in that situation we'll be going for regression testing. And like we have covered three types of regression testing. One is the unit regression surrounding to that change or modification. Regional, right, regional. Okay, it stands for like including that model, other model, few models are also impacted, right? So that comes under regional test regression testing. And when we can say it's a full regression, so in that situation, due to one model change, there will be impact on all other models. Okay, so in that situation we need to go for full regression, right? So yeah, this is the relevance. Like on the first side, like once we started with the testing, we'll be performing smoke testing on the starting phase of projects or relatively unstable build in order to check the build stability. But when day by day, cycle by cycle build gets stable, in that situation we'll be going some exploring more additional testing functionalities over here under the sanity, such as including basic functionality as well as the bug fixes, right? Once we done with this build verification testing, right, later on we'll be moving to the system testing. And under system testing, if any bug is found and that one is fixed, so upon that we are performing retesting, right? Okay, here we are performing retesting for each bug fix. And once we done with the retesting, so we'll be evaluating, we'll be rechecking due to that model if there is any impact on other model, and based on that we are performing regression testing, right? Yeah. So yes, and like we have covered the entire flow from the starting to the end, like from the documentation, requirement collection, then its analysis, then the designing, then coding. Then from the development team side, there will be unit testing, integration testing. Once we receive the build number, right, then later on we'll be starting with smoke or sanity testing. We can say smoke or sanity depending upon the build stability, right? Once we done with this testing, so under test system testing we'll be performing different testings, right? Out of that, if there is any bug fixes, so we'll be implementing retesting in order to cross verify whether that bug is fixed or not. Okay, and due to this bug fix or due to any new modification, we have to ensure like there will be no impact on other model. For that purpose we are performing regression testing, right? उसी चीज को हमें evaluate करना है, तो on that front हम कौन सा testing perform करते हैं? Regression. And there are three types of regression testing. One is the surrounding to that unit regression, then uh, regional specific to that model as well as some impacted model, and full regression stands for all models within that particular project, right? Okay, so once we done with the system testing, then we'll be moving towards the UAT, that is the user acceptance testing. And within UAT we have two types of testing, that is the alpha and beta, right? We discuss more on the previous lectures on this, right?
Yeah. So yeah, once we done with the UAT testing as well, then next phase comes in a picture, that is the deployment. Okay. So in that situation, if we are releasing software application first time, so in that situation, it will be called as go live. Okay. And it will be deployed on the production server side. Okay. So that end users will going to use. And if particular software is already released into the production and we are maintaining or we are updating its next version, so in that situation it will be called as release. Okay. And yeah, we once we done with deployment phase as well, then we'll have a maintenance team in order to support the production, whatever the like failures we are getting in the production side, so this team will be responsible to handle them, right? Yeah. So yes, this topic we have covered into the yesterday's lecture, right? Okay. Yeah, resharing the screen again, guys. Okay. Yes. So yeah, in the yesterday's lecture we have covered a few terminologies surrounding to the software testing. Out of that, we cover up with smoke, which is performed on relatively unstable build, sanity, which will be performed upon the stable build, right? Then once there is a bug fix or any changes, we'll be performing retesting for the bug fix particular area testing. Due to this bug fix or modification, if there is any change into the another model, then we'll be going for regression testing, right? So these are the sequence, or we can say relevance. Okay. And this will repeat for each your cycle. Okay. Whether it could be a any kind of model, a waterfall, spiral, VNP model. Okay. These phases will get repeated during testing. Okay. Now we need to focus further on the exploratory testing, ad hoc testing, and monkey testing. So these three things we'll see one by one, and later on we'll have a comparison so that you'll be having a clear understanding. हमें अभी है ना exploratory testing, ad hoc और monkey इन तीनों पे focus करना है, right? Okay, चलो let's move ahead and later on we'll see. Okay, rest of the things. Okay, yeah. So we done, right? Okay, we done with the smoke, sanity, your retesting and regression, right? Now we'll be focusing on exploratory. So guys, these are the different types of testing techniques, right? Or we can say types of testing. We need to have idea about this, right? Okay, depending upon project, we need to execute this type of testing. Okay, see, in case of exploratory testing, what I will do now, I will directly go to the comparison. Actually, we need will हमें है ना जो क्वेरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इन कंपैरिजन ही पूछे जाते हैं, राइट? सो विल फोकस मोर हियर। यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट्स कवर अप किए हैं, ठीक है? तीनों में ना थोड़ा ही मतलब स्मॉल डिफरेंस है, ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें जो जो कॉमन पॉइंट्स है ना, उनको कंपैरिजन में ही स्टडी करने हैं, और जो डिफरेंस है वो भी हमें थोड़े हाईलाइट करने हैं। लेट्स सी exploratory, ad hoc, and monkey testing. Monkey testing is also called as gorilla testing. Okay, that will say as well. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, सी अप टिल नाउ अभी तक हमने जो भी एसडीएलसी के फेजेस या मॉड्यूल देखे, राइट? उसमें फर्स्ट वन फेज था आपका रिक्वायरमेंट कलेक्शन, राइट? रिक्वायरमेंट कलेक्शन के बाद उसका एनालिसिस, राइट? देन डिजाइनिंग। सो वहां पे आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो तीनों केसेस में आप जब भी कंपनीज में जाते हो ना, ओके, डिपेंडिंग अपन प्रोजेक्ट, तो वहां पे अगर इनकेस डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। तीनों टेस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होता, कोई भी ऐसा टेस्टिंग प्लान नहीं होता। ओके, फाइन। ओके, तीनों जगह पे अभी डिफरेंस क्या है ना, वो हम पॉइंट आउट कर लेंगे। ये तीनों भी टाइप जो है, इट्स अ इनफॉर्मल टेस्टिंग टाइप, इट बेस्ड अपॉन द नॉलेज। ओके, इनफॉर्मल टेस्टिंग टाइप है, क्योंकि हमारे पास ना तो इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ना तो कोई प्लान है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ओके, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको थोड़े डिफरेंसेस पता चलेंगे। व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्लोरेटरी, इसके नाम में ही है, हमें एप्लीकेशन का फंक्शनलिटी पता नहीं है, राइट? हमें वो पता करना है। सो टेस्टर डजंट नो द फंक्शनलिटी ऑफ एप्लीकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल आपने जस्ट नाउ कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, उनका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका जो भी एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, उसके बारे में आपको स्टार्टिंग में तो कुछ आइडिया नहीं रहेगी, राइट? एंड इन केस वहां पे डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, रिस्पेक्टिव प्लान डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आपको भी पता नहीं चलेगा वो व्हाट इज द फ्लो फॉर एप्लीकेशन। ओके, चलो,
So this one, ये with respect to exploratory. इन केस ऑफ एडहॉक यहाँ पे आपको थोड़ा पता होता है रिलेटेड टू फंक्शनल टेस्टिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू द मंकी टेस्टिंग यहाँ पे भी हमें पता नहीं होता रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी। ओके, बाद में हम थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। ये तीनों भी हम रैंडमली परफॉर्म करते हैं, एज सच कुछ सीक्वेंस नहीं होता टेस्टिंग का, क्योंकि जब हम नॉर्मल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ना तो इन अ सिक्वेंशियल मैनर करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लाइक फर्स्ट मॉड्यूल फॉर एग्जांपल हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, देन लॉगिन पेज, देन लाइक होम टैब्स, मेन मेनूज, लाइकवाइज हम कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड सीक्वेंस पुट अप करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ प्लान, राइट। बट यहाँ पे जैसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हम जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे ना इट टोटली रैंडम। ओके, then, in case of exploratory testing, intention is to learn and explore the functionality of application. यहाँ पे हमारा main purpose क्या है? In case of exploratory, हम application के लिए new है तो हमें particular application explore करके ही उसकी functionality पता करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे documentation नहीं है। That is the important thing. When it comes to the ad hoc testing, यहाँ पे हमें जैसे बोल रहे हैं हम, राइट, यहाँ पे हमें फंक्शनैलिटी पता है। सो इन दैट सिचुएशन हम किस चीज के लिए परफॉर्म करते हैं? वी लाइक इंटेंशन इज टू ब्रेक आउट द सिस्टम एंड फाइंड आउट कॉर्नर केसेस। मतलब जो भी एप्लीकेशन हमें टेस्ट करना है ना उसके बारे में इन केस ऑफ एडॉक टेस्टिंग हमें नॉलेज होता है। हम टेस्टिंग परफॉर्म क्यों करते हैं? कि लाइक हमने डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है हमारे पास, राइट, बट प्रायर नॉलेज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, हमें लाइक फ्रॉम द एक्सपीरियंस हमें धीरे धीरे पता चलता है कि यार लॉगिन फंक्शनलिटी में इशू हो सकता है, ये बटन में इशू हो सकता है, ड्रॉप डाउन में इशू हो सकता है, फुटर के जो भी लिंक्स दे उसमें कुछ इशू हो सकता है, कॉन्टैक्ट पेज में इशू हो सकता है, मोबाइल नंबर पुटअप करते वहां पे कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ले रहा है, राइट। लाइकवाइज आपके बेस ऑन नॉलेज आपको पता होता है, सो आप पर्टिकुलर सिनेरियोज एग्जीक्यूट करते हो इन केस ऑफ जब भी आपको टेस्टिंग का नॉलेज होता है तो वहां पे आप थोड़ा एडॉक टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू दी मंकी टेस्टिंग, यहाँ पे भी हम डिफेक्ट फाइंड करने की ही कोशिश करते हैं, कॉर्नर केसेस फाइंड कर, कॉर्नर केसेस में कुछ डिफेक्ट है क्या वो चेक करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमें फंक्शनैलिटी पता नहीं होती। सो तीनों में अगर हमें हाईलाइट करना है तो मेन वेरिएशन एंड मेन डिफरेंस क्या है? एडॉक टेस्टिंग में हमें एप्लीकेशन का नॉलेज होता है, राइट, एंड इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी हम एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फंक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द एडॉक एंड मंकी, हम यहाँ पे एक्चुअल डिफेक्ट फाइंड करने की इंटेंशन से चेक कर रहे हैं, राइट। I'll be writing a short description about this so that you'll have a clear understanding in between them. ठीक है, यहाँ पे पुट अप करते हैं तीनों भी पॉइंट। ओके, सो हम अभी जस्ट नाउ जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज रिलेटेड टू द different types of testing. First one is your exploratory testing. Okay, first one is your exploratory testing. Then we have ad hoc testing, sorry, ad hoc testing, right? And third one is your monkey testing. ओके फाइन, तीनों में भी जो सिमिलरिटीज है ना वो पुट अप करते हैं, राइट। सो तीनों भी जो है यहाँ पे हमें लाइक तीनों में similarities जो है, right, that is the documentation. There will be no documentation. Okay, there will be no documentation, no plan. Okay, no plan. Okay, no test plan, right. Okay, so and all three are informal type of testing, means depending upon your knowledge you can perform. These are the informal as we don't have documentation, right. Okay, so these are the some of the common parameters. Okay, and one more common parameter is these are the type of random testing, like we are testing random models, like we have 10 models, we are checking first sometime we are checking 10th model, sometime we are checking 5th model, randomly we are checking in order to check whether application is breaking or not. Okay, so these are the common points, guys. Okay, I'll put up here in the bottom, right, these are the common points for all three. If someone asks you the question, you can simply say in case of exploratory ad hoc monkey, there will be no documentation, no plan, right, it's an informal type of testing and it is performed randomly. Okay, so what are the main differences here? Exploratory testing
हैविंग ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, या पर्पस क्या है यहाँ पे हमें, तो इन ऑर्डर टू, in order learn to, yeah, yes, right, in order to learn, in or order to study. learn the functionality, okay, functionality of your application। जो भी आपका एप्लीकेशन है, जब भी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, राइट, ओके, सो इन दैट सिचुएशन आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्सप्लोर करने के लिए बोला जाता है। सो इन दैट सिचुएशन आप जो भी है पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए चेक करते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, लॉगिन कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हो तो कौन सा लिंक ओपन हो रहा है, राइट। सो दीज आर द एक्सप्लोरेटरी एंड मेन पर्पज इज टू लर्न learn or check or learn, right, main purpose is to learn, okay, or explore the functionality of your application। But when it comes to the ad hoc testing, right, here we have already testing knowledge। इसका objective क्या है basically, we have, we should have some functionality level knowledge, okay, we should know, simple we can write, we should know the functionality, okay, functionality of application। And what is the purpose main here, okay, the main purpose is to find out corner cases, right, corner defects we can say, right, we need to find out corner defects, that is the main intention for ad hoc testing। And yeah, in case of monkey, here also we don't have the knowledge about application, we don't have, okay, don't have knowledge about the functionality we can say, okay, we don't have knowledge about the functionality, but we are but we are trying to find the defects, right, Corner. yes, find the defects in corner cases, okay। So तीनों में बेसिक यही डिफरेंस है गाइस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन। एक्सप्लोरेटरी में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी कैसे काम कर रही है वो लर्निंग करना है, राइट, एंड लेटर ऑन हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। बट इन व्हेन कम इट कम्स टू द एड हॉक, जहाँ पे हमें टाइम कम है, राइट, हमें एप्लीकेशन, गाइस स्टॉप द एनोटेशन, ओके, वन मोमेंट गाइस, ओके, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द एड हॉक, यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम कम है ड्यूरिंग द टेस्टिंग, राइट, एंड बट हमें फंक्शनलिटी पता है, सो इन दैट सिचुएशन हम रैंडमली सम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एप्लीकेशन व्यू करके देखते हैं, राइट, पर्टिकुलर फंक्शनलिटी चेक करके देखते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉर्नर केसेस। एंड इन केस ऑफ मंकी टेस्टिंग हमें है ना उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी पता नहीं होती, बट एज अ टेस्टर हमें प्रीवियस नॉलेज होता है, राइट, बेस्ड ऑन दैट आल्सो हम कॉर्नर केसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट कम्स अंडर योर मंकी टेस्टिंग। क्लियर है, these are the similarities and these are the main differences only, okay, fine, any question here guys, तीनों में difference clear है, what are the similarity and what are the Yes. differences, okay। सर कॉर्नर डिफेक्ट्स क्या होते हैं हाँ, कॉर्नर कॉर्नर डिफेक्ट्स? सिंपल है, कॉर्नर डिफेक्ट इट मींस मैम, फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, ओके, वहां पे हमने विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 100 टेस्ट केसेस राइट कर लिए, ओके, फाइन, हमने 100 टेस्ट केसेस प्रिपेयर अप कर लिए, बट उसमें से भी एक्चुअली कुछ ना कुछ जगह ऐसी टेस्टिंग के लिए छूट जाती है ना कि वहां पे चांसेस है डिफेक्ट रहने के, डिफेक्ट इट मींस फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है, सही से वर्क नहीं हो सकता। सो इन दैट सिचुएशन वो चेक करने के लिए ना अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन हम जो टेस्टिंग करते हैं ना, दैट कम्स अंडर योर कॉर्नर केस डिफेक्ट फाइंडिंग, ओके, मतलब रेगुलर वे में भी हम टेस्टिंग करते हैं, बट स्टिल कि कुछ कुछ कॉर्नर साइड के लिए, फॉर एग्जांपल कोई आपका वेब एप्लीकेशन है जिसमें आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि ये यहाँ पे हमें कुछ ट्रबल मिल सकता है, लेकिन वहां पे क्लिक करने के बाद आपको है ना वो पेज सही से लोड नहीं होता, उसके पर्टिकुलर लिंक ओपन नहीं होता, राइट, बट आपने ड्यूरिंग टेस्टिंग वो परफॉर्मिंग नहीं किया होता, बट आपको पता रहता है बेस्ड ऑन आपके प्रीवियस नॉलेज कि अरे हाँ यहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है, लाइकवाइज उसी के को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं कॉर्नर केसेस, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज सोचना, राइट। ओके, एनी एडिशनल क्वेरी गाइस ऑन दिस? No, sir. ओके फाइन, चलो लेट्स, ओके, थोड़ा हम है ना, या लेट मी शेयर द स्क्रीन, ओके,
Okay. Yes. Next topic is, guys, related to the testing term. This one is only related to the testing terminology, right? The next topic is a positive testing, and it's exactly opposite is the negative testing. We'll see. Firstly, we'll discuss here. Okay. So when it comes to the any kind of testing, there will be two kind of scenarios. मतलब हमें कोई भी टाइप का टेस्टिंग करना है ना, तो या कोई भी नॉर्मल हमें डिसीजन लेना है, तो देर विल बी टू सिनेरियो, राइट? Yes or no? Likewise, in case of testing also, there will be two kind of scenarios. One is positive scenario and another one is negative scenario. Okay. We'll see with respect to testing. Okay. ठीक है. So in case of positive testing, see guys, testing application with valid input is called as positive testing. Just remember the first line so that you'll have clear understanding. हम जो भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं ना, वहां पे हम जो भी वैलिड इनपुट्स पुट अप करेंगे, दैट कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्टिंग. फॉर एग्जांपल, हम फेसबुक का फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं, राइट? वहां पे हमें वैलिड यूजर नेम चाहिए और वैलिड पासवर्ड चाहिए. इन दैट केस अगर वो डिटेल हम पुट अप करके लॉगिन की फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग पॉजिटिव टेस्टिंग, राइट? चलो, लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन अनदर एग्जांपल. Here basically we are checking the how application behaves as per the expectation with the positive input. Okay, positive input. Okay, we'll see. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें है ना एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, एंड विद इन दैट टेक्स्ट बॉक्स हमें नंबर्स, ओनली नंबर्स एंटर करने हैं, राइट? सो एक वेब पेज है, वेब पेज पे आपका एक इनपुट बॉक्स अवेलेबल है जिसमें सिर्फ आप नंबर एंटर कर सकते हो. दैट इज द रिक्वायरमेंट. मतलब जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बोली है कि लाइक हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें सिर्फ नंबर एंटर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, राइट? सो वहां पे इनपुट करने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर आना चाहिए, उसमें ना कोई कैरेक्टर चाहिए, मतलब ना कोई एबीसीडी लेटर चाहिए, ना कोई हैश डॉलर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर चाहिए. हमें सिर्फ वहां पे नंबर आने चाहिए. सो इन दैट सिचुएशन ये हो गई पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे सिमिलर है, सिंपल रिक्वायरमेंट है. हमें एक टेक्स्ट बुक चाहिए जिसमें सिर्फ ट्रिपल लाइन मीन्स 3 डिजिट, मैक्सिमम 3 डिजिट्स ओनली नंबर आना चाहिए, राइट? अगर आप टेस्टिंग करते हो 0 0 के साथ, देन 1 1 के साथ, 1 2 3, कोई भी 3 डिजिट नंबर, राइट? या कोई भी लेस देन दैट नंबर एज वेल. ओके, तो वहां पे आपका जो भी सेट ऑफ इनपुट्स है, वो सभी आपके सेट ऑफ इनपुट्स कैसे रहेंगे रे? पॉजिटिव रहेंगे, राइट? सो आप जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से जो टेस्टिंग करते हो ना, दैट लाइक विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओनली, दैट कम्स अंडर पॉजिटिव. विल सी इन डिटेल in the above text box, in the application which accept maximum 3 digits, right? यहाँ पे only 3 digits accept कर सकता है, that is the part of requirement. Hence the range of data inputs from 0 to 999, मतलब जो भी range of digits है from 0 to 999 is called as your positive inputs. Okay, surrounding to this input, मतलब surrounding to this requirement only. Okay, 0 से 999 तक जो भी हम डेटा पुट अप करेंगे into that test tick box for the testing, that comes under your positive. And using this we are cross validating or we are testing the functionality is called as positive testing. Simple. हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, लेट मी एक्सप्लेन हियर एज वेल. ओके, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं सो दैट you'll have a strong understanding surrounding to positive testing. Guys, हम अभी just जो टॉपिक कर रहे हैं that is the positive testing. Fine. Okay, पॉजिटिव टेस्टिंग, राइट? ओके, सो अभी देखिए, हमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, सिंपल समझते हैं. हमारे पास रिक्वायरमेंट है एक लॉगिन पेज, लॉगिन फंक्शनलिटी. सिंपल. ओके, लॉगिन फीचर और फंक्शनलिटी हमें टेस्ट करना है, राइट? लॉगिन फीचर टेस्ट करना है हमें. ओके, सो विद इन दिस लॉगिन फीचर हमें क्या चाहिए रे? फॉर टेस्टिंग पर्पस हमें चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड. ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, राइट? सो आपका एक लॉगिन फीचर है, वो पर्टिकुलर लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड. फॉर एग्जांपल, एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास जो टेस्ट डेटा है, यूजर नेम है, दैट इज द एडमिन इज द यूजर नेम, एंड जो पासवर्ड है दैट इज द एडमिन. ओके,
admin@123 फॉर एग्जाम्पल। ये आपका पर्टिकुलर यूजर नेम है और ये आपका वैलिड पासवर्ड है, राइट। आप जब भी लॉग इन करना चाहते हो उस टाइम अगर ये दोनों क्रेडेंशियल मैच होते हैं देन एंड देन ओनली आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉग इन हो पाएगा, राइट। सो दिस सिनेरियो, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नथिंग बट पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव टेस्टिंग, राइट। अभी सेकंड कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है आपका? ओके, सेकंड कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बन सकता है। यूजर नेम आई विल राइट पासवर्ड। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने तो करेक्ट, राइट, और विल सी वैलिड। ओके, वैलिड यूजर नेम रखा और वैलिड पासवर्ड भी रखा, राइट। सो इन दैट सिचुएशन जो भी टेस्टिंग रहेगा आपका इट कम्स अंडर पॉजिटिव, मतलब उसी को हम पॉजिटिव टेस्टिंग बोलेंगे, राइट। ओके, बट इन नेक्स्ट मतलब सेकंड टेस्ट केस के लिए, सेकंड सिनेरियो के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर नेम इनवैलिड यानी गलत डाल दिया, राइट, एंड पासवर्ड वैलिड पुट अप किया। सो इन दैट सिचुएशन हमने जो टेस्ट सिनेरियो चेक किया ना दैट कम्स अंडर योर नेगेटिव। मतलब ऐसा हो सकता है कस्टमर जो एंड यूजर है वो गलत इनपुट पुटअप कर सकता है। जो वो माइंडसेट है ना, मतलब अपोजिट साइड जो होना चाहिए दैट कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्टिंग, एंड गलती से हो सकता है यूजर कर सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है। वो जो डिफरेंट सिनेरियोज है ना, अपोजिट सिनेरियोज रादर देन योर रिक्वायरमेंट विच कम्स अंडर योर नेगेटिव टेस्टिंग। तो ये आपका एक नेगेटिव टेस्टिंग हो गया, राइट, नेगेटिव टेस्ट केस हो गया, राइट, सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, यूजर नेम वैलिड पुट अप किया है हमने, ठीक है, बट आपका पासवर्ड इनवैलिड है। ये भी आपका वन काइंड ऑफ नेगेटिव सिनेरियो है, राइट। एंड लास्ट सिनेरियो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके, दोनों भी आपने इनवैलिड पुट अप कर लिए, राइट, दोनों भी इनवैलिड पुट अप कर ले। दिस आल्सो कम्स अंडर योर negative testing. Okay, so positive testing means what, surrounding to your requirement जो भी आप डिटेल्स वैलिड डिटेल्स पुट अप कर रहे हो, राइट, दैट कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्टिंग। एंड इन ऑर्डर टू चेक यूजर ये भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकता है, गलती से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो तीनों सिचुएशन का टेस्टिंग हमें करना पड़ता है, दैट कम्स अंडर योर नेगेटिव टेस्टिंग। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल गाइस, इसका है ना डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए एकदम। ओके, ये एग्जांपल क्लियर है लॉगिन वाला? यस सर। ओके, चलो ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो भी हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे ना, इसी को हम पॉजिटिव टेस्टिंग बोलते हैं। एंड फॉर दिस हमें जो वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड चाहिए ना, उसी को हम बोलते हैं टेस्ट डेटा। क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। और अगर हम पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट डेटा, एंड इन केस ऑफ योर नेगेटिव टेस्टिंग नेगेटिव टेस्ट डेटा, राइट। और इन शॉर्ट सिंपली यू कैन से टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा इज नथिंग बट वॉट एवर डिटेल्स यू रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग योर टेस्ट। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सब कुछ डिटेल लगेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लाइकवाइज आपको लॉग इन करना है तो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए सिर्फ, राइट, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट नाउ जो रिक्वायरमेंट हमने देखी थी, ओके, जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, राइट, जहां पे सिप नंबर चाहिए हमें। क्या चाहिए रे, सिप नंबर चाहिए, ओके। एंड उनकी भी उन्होंने रेंज स्पेसिफाई की है, हमें फ्रॉम 0 to 999 ही नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 999। तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी डेटा नंबर्स, ओके, आप जो भी डेटा पुटअप करते हो, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट डेटा, ओके, टेस्ट डेटा आपने 0 पुटअप किया वैलिड, ओके, आपने 1 पुटअप किया वैलिड, 2 किया वैलिड। लाइकवाइज आपने ना 999 तक जितना भी डेटा पुटअप करोगे ना, इट ऑल कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्टिंग। हम ऐसे हर एक डेटा को इनपुट करके नहीं देखते, इसके भी टेक्निक्स है जो अपकमिंग सेशंस में कवर हो गए हैं, या कल ही शायद कवर हो गए। ओके, एज ऑफ नाउ आप समझिए, जो भी रिक्वायरमेंट थी हमें 0 to 999 एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मतलब हमें कोई भी अदर टेक्निक नहीं है, तो हमें मैन्युअली चेक करते बैठना पड़ेगा, अरे हाँ 0 एक्सेप्ट हो रहा है क्या, हो रहा है, 1 एक्सेप्ट हो रहा है क्या, हो रहा है। लाइकवाइज हमें 999 तक क्रॉस चेक करते बैठना पड़ेगा, राइट, फॉर पॉजिटिव सिनेरियो। ओके, सो इतना टेडियस टास्क, इतना डिफिकल्ट टास्क को ओवरकम करने के लिए भी टेक्निक्स है ड्यूरिंग टेस्टिंग, हम बात करेंगे अपकमिंग सेशंस में। ओके, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, बट हम कोई यूजर है तो वहां पे -1 भी पुट कर सकता है,
-2 भी पुट कर सकता है। लाइकवाइज नेगेटिव साइड पे वो कितना भी चेक कर सकता है। एंड अगर हम 999 के बियॉन्ड अगर जाते हैं तो वहां पे हम 1000 पुट अप कर सकते हैं, राइट। 1000 पुट अप कर सकते हैं, देन 1001 पुट अप कर सकते हैं। लाइकवाइज हम यहाँ भी इनफाइनाइट जा सकते हैं, राइट। सो ये जो बाउंडेड रेंज है ना, इट कम्स अंडर योर पॉजिटिव, एंड आउट ऑफ दी पॉजिटिव टेस्टिंग जो भी आपकी बाउंडिंग रहेगी, इट कम्स अंडर योर नेगेटिव टेस्टिंग। देखिए क्लियर है सेकेंड एग्जांपल Yes, भी। sir. ओके, अदर्स प्लीज। Yes, sir. Hello. ओके, Hello. Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes. ओके तर जे फाइन। पॉझिटिव्ह टेस्टिंग मध्ये 0 to 999 पर्यंत 999 जातो. तर आपण त्याच्या निगेटिव्ह पण मध्ये घेऊ शकतो का आपण त्यात? हाँ, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। आपके अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, राइट। इस सिचुएशन में हमें फॉर एग्जांपल सिर्फ अब 0 to 999 यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं है, इट मींस ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट। अगर आपके रिक्वायरमेंट में यहाँ पे मेंशन है कि पॉजिटिव भी चलेगा एंड नेगेटिव भी चलेगा, सो इन दैट सिचुएशन आपका जो नेगेटिव भी डेटा रहेगा ना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्टिंग। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट ऐसा, रिक्वायरमेंट ही आपका ऐसा है कि आपको पॉजिटिव 0 to 999 पॉजिटिव साइड पे भी चलेगा, एंड व्हेन ऑन नेगेटिव साइड भी आपका अप टू 999 चलेगा। सो इन दैट सिचुएशन ये भी सेट ऑफ जो आपका डेटा है, इट आल्सो कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्टिंग। सो यहाँ पे भी आप जैसे ये रेंज है आपका बेसिकली लाइक okay, -1, okay, whatever, like it will start from 0 if the 0 is given, okay, 0 -1 -2, likewise जो भी आपका ये रिस्पेक्टिव रेंज रहेगा ना, it will also comes under your positive testing. It totally depends upon your requirement. मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव टेस्टिंग, नेगेटिव है तो नेगेटिव टेस्टिंग, it doesn't mean that. It totally depends surrounding to your requirement. Clear है? Yes, sir. Yes. ओके फाइन। और किसी को डाउट गाइज, ये थोड़ा क्लियर कर लो, क्योंकि है ना मुझे पता था ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमें मतलब मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था। नहीं वो हाँ, ऊपर का ही समझ में आ गया ना। मतलब अगर उन्होंने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, अगर दोनों वैलिड है तो मतलब वो पॉजिटिव टेस्टिंग है। अगर उन्होंने निगेटिव के लिए बताया कि मतलब अगर यूजर नेम पॉजिटिव बराबर डाला है और पासवर्ड गलत डाला तो भी गलत आया, तो बोले तो उसको बोलते हैं निगेटिव टेस्टिंग, बराबर। राइट। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ये डिटेल्स एज पर रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो भी टेस्ट डेटा है ना, ये हमें बनाना पड़ता है एज ए टेस्टर। ओके, मतलब अगर कुछ प्री डिफाइंड डेटा है तो ही हमें फ्रॉम क्लाइंट एंड या हमें टीम से मिलता है, डेवलपमेंट टीम से, नहीं तो रेस्ट ऑफ द डेटा पूरा हमें खुद के एंड से ही बनाना पड़ता है। इसकी टेस्टिंग टाइप से बेसिकली हम देखेंगे टेस्ट तो आपके। दोनों लेने पड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव यस, भी और निगेटिव भी। दोनों सिनेरियो क्यों चेक करना पड़ेगा? अरे आप ही बताओ मुझे, क्यों चेक करना पड़ेगा? बराबर है ना, करना पड़ना कि अगर पासवर्ड गलत भी डालेंगे तो भी खुल रहा है और सही डाल रहे तो भी खुल रहा है, तो मतलब वो प्रॉब्लम ही है ना, इश्यू है, राइट, डिफेक्ट है वो, करेक्ट। सो वही एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग टीम है ना, हम वही चेक करते हैं। डेवलपर का काम क्या है पता है? कोई भी फंक्शनलिटी अगर क्रिएट हाँ। किया है, कोई फंक्शनलिटी डेवलप किया है ना, उसको वो सिर्फ मतलब उसका इंटेंशन होता है कि भाई देख सही डिटेल्स के साथ चल रहा है। नेगेटिव का जो ज्यादातर स्कोप रहता है ना, वो फ्रॉम टेस्टिंग साइड ही होता है, इसीलिए टेस्टर की जरूरत पड़ती है। नहीं तो डेवलपमेंट साइड से उन्होंने जो भी लॉजिक लगाया लॉगिन फंक्शन के लिए, अगर वैलिड डिटेल के साथ ही नहीं चल रहा है तो वो फंक्शनलिटी वर्क हो रही है सब बोल सकते हैं क्या हम? नो, राइट। नहीं बोल ओके, सकते। इसीलिए लाइक वो मोर ऑन द पॉजिटिव साइड चेक करते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ टेस्टर लाइक टेस्ट टीम वी आल्सो नीड टू इंश्योर लाइक जो भी एंड यूजर कर सकता है ना गलतियां, सारी गलतियां हमें कैप्चर करनी है ड्यूरिंग टेस्टिंग। ओके, सो या दिस इज ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। क्लियर है इस पे, दोनों पे? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो ग्रेट। ओके, चलो देखते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है। चलो अभी आपको है ना नेगेटिव भी क्लियर अंडरस्टूड होगा। यहाँ पे देखिए, ओके, वन मोमेंट गाइस। Sorry, okay. So when it comes to the negative testing, the testing application with invalid inputs, okay, is called as your negative testing. Simple. Testing done with the valid inputs, how will we going to decide whether the input is valid or invalid? It totally depends upon requirement. Okay, it checks whether application behaves as expected with the negative data.
और नेगेटिव इनपुट। यहाँ पे भी हम क्रॉस चेक करते हैं, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन रेज किया था और आंसर किया था कि अगर गलत डिटेल के साथ, इनवैलिड डिटेल के साथ भी लॉगिन हो रहा है तो दैट इज द इशू डिफेक्ट। वो भी हमें क्रॉस चेक करना है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है हमारे पास ओनली नंबर्स एक्सेप्ट होना चाहिए 999 या 0 to 999। ओके, दिस वन इज द रिक्वायरमेंट। ओके, आउट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट हम जो भी सर डेटा, हेलो हेलो यस, सर, एक कंफ्यूजन है। यस अगर ठीक है, वो भी कवर अप होगा गाइस। ओके, विद इन 1 to 2 लेक्चर्स। ओके चलो, या okay, when it comes to the negative testing guys, the data inputs beyond your requirement comes under your negative testing. Okay, and using this also we are checking the functionality, we are testing the functionality, right? This type of testing is nothing but your negative testing. Okay, so यहाँ पे जो भी आपका नेगेटिव टेस्ट डेटा रहेगा, इट लाइक आपको यहाँ पे नंबर चाहिए। नंबर्स तो होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 9, राइट? उसी का कॉम्बिनेशन बना के आप 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस 0 to 9 हमारे पास जो अदर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है दैट इज कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z, राइट? सो दीज आर दी आपके लेटर्स के कॉम्बिनेशंस हो गए, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, स्पेशल सिंबल्स भी है, राइट? देन आपके ब्लैंक स्पेसेस एंड नेगेटिव वैल्यूज भी है। ओके, सो ये जो सारा डेटा रहेगा ना, इट कम्स अंडर योर नेगेटिव टेस्टिंग। आप नेगेटिव टेस्टिंग के लिए ये पर्टिकुलर डेटा सेट यूज कर सकते हो। मतलब हमें रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट हमें चेक करना है फॉर नंबर्स, वो भी 3 डिजिट तक, 0 to 3 डिजिट तक, राइट? 999 तक। उसमें भी हमें नेगेटिव साइड पे अगर जाना है तो आउट ऑफ दी इसके हमें चेक करना है, राइट? आउट ऑफ दिस बाउंड, आउट ऑफ दिस रेंज चेक करना है। ओके, सो इन दैट सिचुएशन हम मतलब माइनस में भी जा सकते हैं, जैसे हमने देखा था 1000 के ऊपर भी जा सकते हैं। दैट आल्सो कम्स अंडर योर नेगेटिव टेस्ट डेटा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर्स हमारे पास A to Z है, स्मॉल a to Z है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, सिंबल्स है, ब्लैंक स्पेसेस है एंड नेगेटिव वैल्यूज है। ऑल दिस कम्स अंडर योर नेगेटिव टेस्ट डेटा, राइट? सो अभी जैसे हमने जस्ट नाउ एग्जांपल देखा था, राइट? ओके, सो अभी जैसे बात की थी, किसी ने क्वेश्चन रेज किया था ना, उसी के सराउंडिंग अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने सिर्फ देखा टाइप ऑफ टेस्टिंग, दैट इज द पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। उसके सराउंडिंग है ना हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केस। टेस्ट एज अपना आप सिंपल समझिए, टेस्ट केस मतलब आपके स्टेप्स रहेंगे परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन गिवन टेक्स्ट बॉक्स ओनली एक्सेप्ट 6 to 20 कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स। अभी यहाँ पे देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट आपकी पर्टिकुलर क्या है? इट शुड एक्सेप्ट मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। ओके फाइन। ओके, कैरेक्टर मीन्स योर अल्फाबेट्स ओनली। ओके ठीक है, फॉर नाउ लेट्स कंसिडर फॉर एग्जांपल आपके अल्फाबेट्स में अगर आप कंसिडर करते हो तो कैपिटल A टू कैपिटल Z हो गया 26 एंड स्मॉल a टू स्मॉल z अदर रिमेनिंग 26, राइट? तो टोटली आपके नंबर ऑफ डेटा इनपुट्स हो गए। फ्रॉम पॉजिटिव साइड आप क्या क्या चेक कर सकते हो? देखो, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट्स मिनिमम 6 कैरेक्टर, ये चेक कर सकते हो आप। टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्टिंग मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, ये चेक कर सकते हो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। टेक्स्ट बॉक्स इज एक्सेप्टिंग वैल्यू इन बिटवीन 6 to 20 कैरेक्टर्स, 6 या 20 कैरेक्टर के इन बिटवीन जो भी वैल्यूज है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, वो भी पुट अप करके आप देख सकते हो। एंड इट शुड एक्सेप्ट ऑल अल्फाबेट्स, मतलब A to Z सभी अल्फाबेट्स इसने एक्सेप्ट करने चाहिए, राइट? सो इट ऑल कम्स अंडर योर पॉजिटिव टेस्ट केस सिनेरियो। ओके, when it comes to the negative, देखिए आप लाइक आउट ऑफ द बाउंड फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी 6 to 20 कैरेक्टर्स की, जिसमें अल्फाबेट कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z ही चल सकते हैं, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव साइड तो हम यहाँ पे ना लेस देन 6 भी पुट अप करके देख सकते हैं, मोर देन 20 भी कैरेक्टर पुट अप करके देख सकते हैं। ओके, देन हम नंबर भी पुट अप करके देख सकते हैं, देन स्पेशल कैरेक्टर या ब्लैंक स्पेसेस। So all this comes under your negative test case part or you can say negative testing type. Okay, यहाँ पे clear है दोनों में difference? ये भी एक थर्ड एग्जांपल हो गया आपका। हेलो, Yes, sir. ओके
ठीक है, ग्रेट। ओके, ये टेस्ट केस क्या है ना, बेसिकली ये पता चले इन सेकंड लेक्चर आपको। ओके, एज ऑफ नाउ आपको पॉजिटिव टेस्टिंग या पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो, मतलब थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है। हमने 2-3 एग्जांपल देख लिए, राइट? यस सर। ओके ओके, फाइन फाइन, चलो। ओके, so yes, so see, this one is one of the important topic surrounding to the testing, कि जब भी आपका जेडी रहेगा या जब भी आपका इंटरव्यू रहेगा ना, तभी एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है विद इन अ टीम, आल्सो हम बोलते हैं कि एंड टू एंड टेस्टिंग। ओके, इसके नाम में ये देखो, एंड टू एंड टेस्टिंग, एंड टू एंड मतलब स्टार्ट से एंड तक, सिंपल। ओके, so what is end to end testing? Okay, testing the overall functionality of system, including the test integration amongst the all module, is called as integration testing. Sorry, is called as end-to-end testing. So what is end-to-end testing? Here we are checking overall functionality of your system. Okay, whatever the application or particular module is there. Okay, so we are checking the overall functionality as well as data integration in between all the models. Okay, is nothing but your end-to-end testing. अभी example देखते हैं इसका, so that you'll have a clear understanding. कोई भी एप्लीकेशन है, फर्स्टली हमें लॉगिन करना पड़ता है, राइट? बिफोर दैट आल्सो रजिस्टर करना पड़ता है, राइट? बट अज्यूम दैट कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है, हमने लॉगिन किया, देन हमने कोई फॉर एग्जांपल बैंक का एप्लीकेशन है, तो हमने कस्टमर ऐड अप किया, देन कस्टमर को एडिट किया है, डिलीट किया है, देन लेटर ऑन हम बैंक अकाउंट से लॉग आउट हो गए, राइट? ओके, बेनिफिशियरी एज अ कस्टमर आप समझिए, बेनिफिशियरी ऐड किया। ओके, सो इन दिस सिचुएशन आपने देखिए कितने मेन मॉडल का यूज किया, आपने लॉगिन का भी यूज किया, आपने ऐड कस्टमर, ऐड बेनिफिशियरी का भी यूज किया, पर्टिकुलर कस्टमर के बैंक डिटेल्स जो भी डिटेल्स है उनको एडिट भी किया आपने, लेटर ऑन पर्टिकुलर कस्टमर को आपने डिलीट भी किया, एंड लेटर ऑन आपने एप्लीकेशन को लॉग आउट भी किया। सो दिस वन इज योर कंप्लीट एंड टू एंड टेस्ट सिनेरियो, एंड दिस सिनेरियो कम्स अंडर योर end-to-end testing. Okay, similarly और एक एग्जांपल लेते हैं with respect to, okay, in notes, okay, we'll cover up here. Okay, चलो, तो हमने यहाँ पे है ना पॉजिटिव टाइप ऑफ टेस्टिंग एंड नेगेटिव टाइप ऑफ टेस्टिंग कवर अप कर लिया, राइट? एंड लेटर ऑन जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट इज योर एंड टू एंड टेस्टिंग। ओके, देखते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी जस्ट नाउ हमने जो एग्जांपल किया उसमें हमने ओके देखा कि हम फंक्शनलिटी लॉगिन कर रहे हैं, देन लेटर ऑन हम पर्टिकुलर कस्टमर को ऐड कर रहे हैं, राइट? पर्टिकुलर कस्टमर को हमने फर्स्टली तो क्या किया है, लॉगिन किया, राइट? लॉगिन करने के बाद हमने ऐड कस्टमर किया, ओके, या ऐड बेनिफिशियरी आप समझिए। ओके, देन हमने मॉडिफाई किया पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को, लेटर ऑन हमें रिक्वायर्ड नहीं था, हमारा काम बन गया, तो लेटर ऑन हमने पर्टिकुलर बेनिफिशियरी डिलीट भी किया एंड वी लॉग आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन। ओके ओके, इन अ सिमिलर मैनर सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई भी आप ऑनलाइन एज ऑफ नाउ ट्रांजैक्शंस करते हो, फोन पे हो गया आपका, गूगल पे हो गया, डिफरेंट है, राइट? सो उस पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा, इन दैट सिचुएशन आपको एप्लीकेशन में लॉग इन करना पड़ेगा, राइट? आपने लॉग इन किया फर्स्ट फेज पे, देन सेकेंड फेज पे आपको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो भी है, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट, राइट? कॉन्टैक्ट आपको सर्च करना पड़ेगा या आपको कॉन्टैक्ट मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, आपके पास अगर इनकेस नंबर नहीं है तो, राइट? कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर, आई विल राइट, ओके, मोबाइल कॉन्टैक्ट, आपको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में आपको मोबाइल नंबर सर्च करना पड़ेगा, आपका जो भी फ्रेंड है जिनको भी आपको फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर करना है, राइट? पेमेंट ट्रांसफर करना है, सो उनका मोबाइल कॉन्टैक्ट आपको एक तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो टाइप अप करना पड़ेगा। लेटर ऑन हम नेक्स्ट क्या करते रहे, जो भी अमाउंट है, राइट? जो भी अमाउंट है पर्टिकुलर, ओके, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो फिलअप करते हैं, राइट? हमने अमाउंट फिलअप किया, लेटर ऑन हम पिन एंटर करते हैं, राइट? ओके, एंड जैसे ही पिन एंटर करते हैं तो हमें सेंड का ऑप्शन मिलता है, राइट? एंड जैसे हम सेंड करते हैं तो ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेस होता है, एंड जैसे सक्सेस होता है या फेल होता है जो भी है, ओके, देन हमने फॉर एग्जांपल लॉग आउट किया, राइट? सो दिस इज आल्सो कम्स अंडर योर एंड टू एंड टेस्ट सिनेरियो। हमने एप्लीकेशन में लॉगिन किया, देन पर्टिकुलर यूजर का, फ्रेंड का जो भी मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट सर्च किया, देन जितना भी हम रिक्वायर्ड अमाउंट था वो हमने टाइप अप कर लिया, राइट? देन हमने
पिन इंटर किया, देन पर्टिकुलर अमाउंट सेंड किया, सक्सेस या फेलियर का मैसेज हमें मिला, राइट, एंड लेटर ऑन हमने लॉग आउट कर लिया. सो दिस आल्सो कम्स अंडर योर एंड टू एंड टेस्ट केस. और एक एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिंग का. ओके, कोई भी आप पर्टिकुलर शॉपिंग ऐप पे जाते हो या वेबसाइट पे जब विजिट करते हो, सॉरी, ओके, सो पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट पे विजिट करते हो तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्टली हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, राइट. पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च किया, देन हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, राइट. सॉरी, कार्ट में ऐड करते हैं फॉर परचेस. ओके, अगर हमने डिसीजन बना लिया कि लाइक यही प्रोडक्ट, यही मोबाइल, यही कंप्यूटर हमें चाहिए, तो हम सिंपल सिंपल क्या करते हैं, परचेस और बाय करते हैं, राइट. ओके, बाय पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाता है, राइट, पर्टिकुलर वेबसाइट पे या अदर वेबसाइट पे, बैंक के, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने डेबिट कार्ड यूज किया ऑप्शन. ओके, डेबिट कार्ड ऑप्शन यूज किया. ओके, जैसे हमने डेबिट कार्ड ऑप्शन किया तो लेटर ऑन हमें क्या मिलता है, रे पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद तो हमें यहाँ पे भी पिन या ओटीपी जो भी है, ऑथेंटिकेशन जो भी प्रोसेस है वो फिलअप करना पड़ता है, राइट. अमाउंट तो ऑटोमेटिकली इसके सिचुएशन में पुटअप करेगा. ओके, जैसे हम डिटेल फिलअप करते हैं वैलिडेट होगा एंड हमें एट द एंड सक्सेस या फेल्यूर जो भी है हमारा बेस्ड ऑन हमारे अकाउंट का बैलेंस, राइट, पर्टिकुलर मैसेज आएगा एंड लेटर ऑन हमें उसके डिटेल्स मिलेंगे एंड लेटर ऑन हम पर्टिकुलर वेबसाइट से लॉग आउट कर देंगे या तो हम ब्राउजर ही क्लोज कर देंगे, हमारा जैसे ही काम खत्म होता है. सो आइडियल सिनेरियो में हमें लॉग आउट करना चाहिए. ओके, सो दिस आल्सो कम्स अंडर योर एंड टू एंड टेस्टिंग. So yeah, clear है guys, like what is end-to-end testing? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. मतलब Yes. आपका, yes, आपका कोई भी एप्लीकेशन है ना, उसका पूरा फंक्शनलिटी एक ही फ्लो में आप अगर चेक करते हो ना, दैट कम्स अंडर योर एंड टू एंड टेस्टिंग. मतलब इसमें भी डिफरेंट बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, मैंने जस्ट हाई लेवल पे एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है. ओके, चलो, फाइन. And yes, apart from this guys, there are two important terminologies. इसमें भी है ना थोड़ा confusion होता है, right? So इसमें भी हमें थोड़ी clarity रखनी है, इसके नाम में ये पूरा. Okay, just now we have covered your end-to-end testing, which comes under like from starting model to ending model. हम सारा कुछ उसमें एक single within a single test scenario cover up करते हैं. That is the end-to-end test case, right? Or end-to-end testing. Okay. Next terminology is guys globalization and localization. Okay, globalization means global. Okay, global for entire globe. Okay, it also called as internationalization. Okay, global and internationalization both are the same, and when it comes to the localization, its naming is also similar. Okay, so globalization is, it means internationalization, and yes, second one is the localization. Okay, so in between I and N there are 18 characters or 18 alphabets, hence it is also called as I18N testing, and another one is L10N testing. Okay, because in between L and N there are 10 characters. Okay, okay, so these are the two types of testing. One is globalization. Okay, it is also called as I18N testing, and another one is localization, which is also called as L10N testing. Okay, fine. So what are the main differences we'll see? Okay, in between both we'll see into the comparison manner. Okay, globalization performed to ensure that our software application can run in any culture or local environment as well. Okay, फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी गूगल का वेब, कोई भी आपका शॉपिंग का वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल आपका अमेजोन है, राइट. सो इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, राइट, ये अदर्स कंट्रीज में भी है. लाइकवाइज मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, आपका जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने वाले यूजर्स, फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब है, जीमेल है, राइट, हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में यूज कर रहे हैं, राइट. तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जो भी लेवल का टेस्टिंग होगा, इट कम्स अंडर योर ग्लोबलाइजेशन. ओके, लेटर ऑन.
Different aspects of software are tested to ensure it supports every language and different attributes. Okay, for example, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हिंदी चाहिए एंड लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर. अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पर्टिकुलर इंग्लिश चाहिए. उनकी कंट्री की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो भी वहाँ पे होनी चाहिए, राइट? तभी वेबसाइट पे यूजर्स आके विजिट करके देख सकते हैं. So yeah, this comes under your globalization. Okay, it also test for different currency format. कोई आपका अगर बैंकिंग का वेबसाइट है तो इंडिया में करेंसी डिफरेंट है, अदर कंट्रीज में करेंसी डिफरेंट है. तो आपके जो भी प्रोडक्ट के डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल अमेजोन इंडिया में है और यहाँ पे हमें सब रेट लाइक डॉलर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में दिख रहे हैं, इंडिया की करेंसी में नहीं है, INR में नहीं है, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हम पैनिक हो जाएंगे. नॉर्मल यूजर को तो पता नहीं चलेगा, उनको कन्वर्जन करते बैठना पड़ेगा, राइट? सो दैट शुड नॉट बी द केस. जो भी आपका वेबसाइट, जो भी आपका एप्लीकेशन पर्टिकुलर रीजन में है, उसी सेम रीजन के वो करेंसीज लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करना चाहिए, राइट? देन फॉर एग्जांपल, Facebook supports many languages, right? It can be accessed by people of the different countries as well. Hence, it is the globalized product. Simple. आपका Amazon हो गया, different YouTube, Facebook, Google, different products है जो globally use किए जाते हैं, right? So it is one of the main example, right? आपका कंपनी का जो भी एप्लीकेशन है हो सकता है वो इंडिया में भी यूज हो रहा है, आउट ऑफ द इंडिया भी हो रहा है, right? Likewise. अभी second type is that is the localization testing. So basically it is performed to check the system software application specific to the graphical or cultural environment. मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर बिल्ट अप है तो उसी रीजन के सराउंडिंग टेस्टिंग होगा. वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, वहां पे लाइक कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए, वहां पे कौन कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दैट रीजन ओनली. ओके, लाइकवाइज लोकलाइजेशन टेस्टिंग होती है. then localization product supports specific kind of language, okay, and is usable only into the specific region. For example, चाइना की अगर बात करते तो वहां पे मोस्टली उनके वेबसाइट वगैरह जो रहेंगे विद इन चाइनीज ही रहेगा, राइट? लाइकवाइज अगर हम स्पेसिफिक इंडिया की बात करते तो यहाँ पे हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी सपोर्ट होना चाहिए, राइट? दैट कम्स अंडर योर लोकलाइजेशन टेस्टिंग, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन. ओके, it also checks for the specific currency support, then mobile number support, address format, okay, properly or not, right? In case of our India or in case of any state as well, there are different formats for addresses, right? And when it comes to the currency and mobile number for different countries, different format are there. So we need to ensure like our product is going to use within a specific area or it is a globalized product. Depending upon that we are performing localization testing. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली हमारे यहाँ पे या तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो INR में ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, या उसका सेकंड कन्वर्जन आपको डॉलर में मिल सकता है, राइट? ओके, चलो. For example, localization testing के लिए Baidu.com supports only Chinese language. See, this one is the Chinese product. For their country, they have built it up, right? So this product only supports Chinese language and can be accessed only by the people of few countries. Hence, it is a localized product. It is not a globalized product, right? So likewise, there are two type of testing, guys. One is globalize, another one is localize. Globalization, in that situation we need to check for multiple currencies, then we need to check for multiple languages. Depending upon the culture type, we need to check for surrounding to the features of our application. Okay, when it comes to the localization testing, if our application is dedicated for a specific region, then we need to check surrounding to that region only. Okay, this is on the globalization and localization side. Any question here, guys?